Hello everyone. We are going to start with another lecture of managerial accounting. And in this lecture, we are going to deal with the first question of budgeting, right? So let's quickly start with this question. Let's see what we can do here. A company is budgeting to manufacture and sell two products in the coming year, product X and product Y, right? Actually, these are not product X and Y, these are product alpha and beta, so you may correct it later. Sales are estimated to be 6,000 units of alpha and 10,000 units of beta. Standard selling price of alpha is 20 per unit and beta is 50 pounds per unit. Alpha and beta consist of the following material. उसने आपको material का consumption बता दिया that raw material one require 4 kilograms for alpha and 2 kilograms per unit for beta. Raw material 2 require 250 grams for the manufacturing of alpha and 4 units per kg are required for beta. Selling standard price उसने आपको बता दी कि जी standard price of raw material one is 3 pounds per kilogram, two is 4 pounds per kilogram. Opening and closing stock is given here. Opening stock was 1500, closing stock is 1200. This is not raw material one, this is actually raw material two. So 2100 kilograms of opening quantity of raw material two and 3000 kilogram is the closing quantity of raw material two. Same with अल्फा एंड बीटा और फिर उसने लेबर आवर्स बता दिया लेबर आवर्स वेज रेट और सॉरी लेबर आवर्स एंड वेज रेट बता दिया एंड बजटेड प्रोडक्शन भी बता दी सो व्हाट आर योर टारगेट्स टू मैन्युफैक्चर the target is to produce sales revenue budget, production budget, consumption budget, purchases budget, labor budget, and overhead budget. Right. So let's start with the sales budget. मैंने पहले भी कहा था कि this is going to be a very simple question. So it has no specific issues of sales associated with it. So sales budget will be uh, you just need to identify how much revenue you can generate. So sales revenue from alpha, which is the first product. So how many units we want to sell for alpha? 6,000 units is the demand, right? And what is the selling price? Selling price is 20, right? So what will be the sales revenue? Sales revenue will be 6,000 multiplied by 20, right? And sales revenue from product beta. Beta का sales revenue हो जाएगा 10,000 or selling price is 50. So this is going to be around what 10,000 times 50. It's going to be around 500,000, right? Okay, so total revenue will be what? Total revenue will be the sum of the alpha revenue and beta revenue. So it's going to be around 620,000. So this is total budgeted sales, right? उसके बाद जो दूसरा बजट हमें बनाना है सॉरी उसके बाद जो दूसरा बजट हमें बनाना है दैट इज टू प्रिपेयर दी प्रोडक्शन बजट व्हाट इज हाउ मेनी यूनिट्स यू वांट टू प्रोड्यूस फॉर द कमिंग ईयर राइट हमने क्लास में भी बात की थी कि प्रोडक्शन बजट जो है वो एक्चुअली तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है द फर्स्ट फैक्टर इज सेल्स द सेकंड फैक्टर इज क्लोजिंग एंड द थर्ड फैक्टर इज ओपनिंग राइट सो सेल्स वॉल्यूम क्या होगा सेल्स वॉल्यूम हम एक काम करते हैं हम अल्फा और बीटा का अलग कर लेते हैं ठीक है सो अल्फा का जो सेल्स वॉल्यूम है वो तकरीबन 6,000 यूनिट्स का है और बीटा का जो सेल्स वॉल्यूम है वो 10,000 यूनिट्स का है तो इतने यूनिट्स तो हमें सेल करने हैं ठीक है अब बनाने कितने वो डिपेंड कर रहा है कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है क्लोजिंग स्टॉक मैंने क्लास में भी बात की थी कि दिस इज बेसिकली द सेफ्टी स्टॉक द एक्स्ट्रा क्वांटिटी विच यू वांट टू मैन्युफैक्चर इन ऑर्डर टू मीट द अनसर्टेनिटीज राइट सो जो क्लोजिंग स्टॉक हमें मेंटेन करना है अल्फा और बीटा का अल्फा का जो क्लोजिंग स्टॉक है दैट is supposed to be 1400 यूनिट्स राइट और बीटा का जो चले अल्फा कर लेते हैं पहले तो इसका मतलब 6,000 यूनिट्स मुझे सेल करने के लिए बनाने हैं 1400 यूनिट्स मुझे एक्स्ट्रा बनाने हैं सो ओवरऑल आई हैव टू मैन्युफैक्चर 7400 यूनिट्स नाउ व्हाट इज द ओपनिंग स्टॉक इन दिस केस इज अराउंड 1100 यूनिट्स तो इसका मतलब जो मेरी प्रोडक्शन क्वांटिटी होगी या प्रोडक्शन बजट आप उसको कह लें वो होगा 7,400 माइनस 1100 बिकॉज 1100
आई मीन 7400 यूनिट्स बनाने की कोई सेंस नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव 1100 यूनिट्स, राइट। उसी तरीके से बीटा का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है तकरीबन 1000 यूनिट्स का। तो इसका मतलब है कि इतने यूनिट्स तो हमें बनाने हैं। प्लस फिर मसला ये कि बीटा का जो ओपनिंग स्टॉक है वो 1200 यूनिट्स का है। तो दैट मीन्स 11,000 माइनस 1200, तो हमें 9800 यूनिट्स की प्रोडक्शन करनी है। तो दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फिगर बिकॉज हम आगे यूज करेंगे बाकी सारे बजट्स में। तो जो नेक्स्ट बजट हमें बनाना है दैट इज कंजम्पशन बजट, मटेरियल कंजम्पशन बजट, राइट। अच्छा, अब मटेरियल कंजम्पशन बजट में हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगी प्रोडक्शन क्वांटिटी, की प्रोडक्शन क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। तो क्लास में भी मैंने कहा था कि देखो, प्रोडक्शन मटेरियल कंजम्पशन जो है वो मटेरियल वाइज बनता है, जैसे हमने फैब्रिक और बटन की एग्जांपल ली थी। तो यहाँ पे भी रॉ मटेरियल वन की हम कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल वन, राइट। सो रॉ मटेरियल वन रिक्वायर्ड फॉर अल्फा। अल्फा के कितने यूनिट्स बनाने हैं, अल्फा के आपको 6300 यूनिट्स बनाने हैं, और एक यूनिट को बनाने में अल्फा के सॉरी रॉ मटेरियल के कितने यूनिट्स लगेंगे एक यूनिट बनाने में। अगर हम अल्फा का एक यूनिट बनाते हैं तो रॉ मटेरियल वन के 4 किलोग्राम्स लगेंगे, राइट। सो कंजम्पशन विल बी 6300 टाइम्स 4, राइट। उसी तरीके से हम लेंगे रिक्वायरमेंट रॉ मटेरियल वन रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट बीटा, राइट। बीटा में क्या होगा, बीटा की हमें 9800 यूनिट्स बनाने हैं, और एक यूनिट को बनाने में रॉ मटेरियल वन कितना लगता है, बीटा का अगर एक यूनिट बनेगा तो रॉ मटेरियल वन 2 kgs लगता है, राइट। सो व्हाट विल बी द ओवरऑल कंजम्पशन, ओवरऑल कंजम्पशन विल बी अराउंड 44,800, राइट। सो दिस इज टोटल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल वन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम चलेंगे रॉ मटेरियल टू पे, ठीक है। सेम यही चीज हम रॉ मटेरियल टू पे अप्लाई करेंगे। कंट्रोल सी कर लेते हैं, कंट्रोल वी कर लेते हैं। अच्छा, अब अल्फा के कितने यूनिट्स बनाने हैं, अल्फा के आपको यही 6300 यूनिट्स बनाने हैं, बीटा के आपको यही 9800 यूनिट्स बनाने हैं। बट फर्क ये है कि रॉ मटेरियल टू अगर अल्फा के लिए चाहिए तो आपको 250 ग्राम चाहिए। 250 ग्राम्स का मतलब है 250 डिवाइडेड बाई 1000, राइट, 0.25। और बीटा में ये 4 यूनिट्स पर किलोग्राम है, 4 यूनिट्स पर किलोग्राम मीन्स 1 kg में 4 यूनिट्स बन रहे हैं। सो दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाई 4, सेम फिगर, राइट। सो ओवरऑल रॉ मटेरियल टू जो आपको चाहिए होगा वो चाहिए होगा 4025, राइट। लेट्स राइट इट रॉ मटेरियल टू, और उसको भी ठीक कर लेंगे हम रॉ मटेरियल टू के रेफरेंस से, ठीक है। और ये आ गया कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल टू, ठीक है। तो ये तो हमने मटेरियल का कंजम्पशन निकाल लिया। जो नेक्स्ट चीज हमें कैलकुलेट करनी है वो हमें करनी है मटेरियल परचेजेस बजट। परचेजेस बजट हमने क्लास में बात की थी कि दैट इज डिपेंडेंट अपॉन हाउ मेनी किलोग्राम्स यू वांट टू बाय, राइट। सो लेट्स सपोज परचेजेस बजट हम ये चलें यहीं पे कर लेते हैं। परचेज बजट हम यहाँ पे बना लेते हैं, राइट। अच्छा, परचेज बजट में हम सबसे पहले बात करेंगे रॉ मटेरियल वन की, ठीक है, रॉ मटेरियल वन, और फिर हम ले लेंगे रॉ मटेरियल टू, ठीक है। परचेजेस बजट मैंने कहा था 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो उसमें आता है कंजम्पशन, जो हम पिछले बजट में बना चुके हैं, ठीक है। कंजम्पशन उसमें हम ऐड कर देंगे, उसमें हम ऐड कंजम्पशन जो रॉ मटेरियल वन की है वो है 44,800, जो रॉ मटेरियल टू की कंजम्पशन है वो है 4025, राइट। उसमें हम ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वन जो है वो है तकरीबन 1200 किलोग्राम्स, ठीक है। तो इसका मतलब रॉ मटेरियल वन मुझे टोटल कितना चाहिए, 44,800 तो कंज्यूम होगा, और 1200 जो है वो एक्स्ट्रा में चाहिए, तो 46,000 किलोग्राम्स मुझे रॉ मटेरियल बन के चाहिए, ठीक है। आई थिंक बैटरी चल जाएगी।
अच्छा, उसके बाद फिर हम ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे, बिकॉज ओपनिंग स्टॉक का मतलब ये वो क्वांटिटी है जो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल 1 का है तकरीबन 1500 किलोग्राम्स, तो इसका मतलब 4600 माइनस दिस फिगर, तो इट्स अराउंड 40 44,500। तो ये जो चीज़ है ये आपकी परचेज क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, ओके। अच्छा, अब रॉ मटेरियल 2 में कंजम्पशन तो हमने 4025 ले लिया। क्लोजिंग स्टॉक कितना है रॉ मटेरियल 2 का? जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये रॉ मटेरियल 2 है दूसरा वाला, वो है तकरीबन 3000 किलोग्राम्स, राइट। 3000 किलोग्राम्स तो एडिशनल हमें चाहिए, तो ओवरऑल 7000 की चाहिए। लेकिन फॉर्चुनेटली जो ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास वो तकरीबन 2100 किलोग्राम्स का है ऑलरेडी। तो फिर मुझे तकरीबन 4925 किलोग्राम चाहिए मुझे ओवरऑल रॉ मटेरियल 2 के। So this is the purchase budget, right? This is the purchase quantity you have to buy. अगर आप इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर कोई आपसे पूछे कि यार परचेज कॉस्ट क्या है, तो परचेज कॉस्ट में 44,500 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, बिकॉज 3 उसकी प्राइस है, और 4925 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, बिकॉज ये उसकी प्राइस है, ठीक है। अच्छा, तो परचेज बजट भी हमने बना लिया। द नेक्स्ट बजट विच वी नीड टू मैन्युफैक्चर इज लेबर बजट। अच्छा, लेबर बजट जाहिर सी बात है वो लेबर आवर्स वगैरह हो है उसमें सारी चीजें। अब लेबर बजट अगेन ये डिपेंड करेगा प्रोडक्शन बजट पे। तो लेबर बजट आप देखें और मटेरियल कंजम्पशन बजट अगर आप देखें, तो आपको दोनों में बहुत सिमिलैरिटी मिलेगी, क्योंकि दोनों चीजें ही एक जैसी हैं, ठीक है। सो बस सिर्फ सिचुएशन देखते जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सो लेबर बजट में सबसे पहले तो हम लेबर आवर्स कैलकुलेट करेंगे। अब लेबर आवर्स भी हम लेबर वाइज कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज दोनों लेबर का वेज रेट अलग अलग है। तो अगर हम आर्स इकट्ठे निकाल लेंगे तो फिर वेज रेट कौन सा यूज करेंगे? तो पहले हम बात करेंगे लेबर ए की, जैसे हमने मटेरियल में रॉ मटेरियल 1 लिखा था। सो लेबर आर्स रिक्वायर्ड फॉर अल्फा। अच्छा, अब अल्फा में कितने घंटे चाहिए होंगे? अल्फा की जो प्रोडक्शन है, सॉरी, अल्फा की जो प्रोडक्शन है वो हमें कितनी करनी है? अल्फा के हमें यूनिट्स बनाने हैं तकरीबन 6300, ये ठीक है। सॉरी, अल्फा के हमें 6300 यूनिट्स बनाने हैं, ठीक है। एक यूनिट को बनाने में जो लेबर आवर्स लग रहे हैं अल्फा के, वो 30 मिनट्स लग रहा है। तो 30 मिनट्स का मतलब 0.5। तो टोटल कितना टाइम लगेगा? 6300 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तकरीबन 3150 आवर्स लगेंगे। फिर वही लेबर आवर्स अगर मुझे बीटा के लिए चाहिए हो, सॉरी, अगर बीटा के लिए मुझे आवर्स चाहिए, तो बीटा के लिए फिर हम बीटा की प्रोडक्शन लेंगे 9800 की। अच्छा, अगर लेबर ए प्रोडक्ट बीटा बना रहा है तो उसमें 1.5 घंटे लग रहे हैं, राइट। तो अगर हम इसी को कंट्रोल डी कर दें तो 14,500 आवर्स चाहिए। तो लेबर के टोटल कितने घंटे चाहिए? लेबर ग्रेड ए वर्कर के लेबर आवर्स लेबर आवर्स, इसको हम ले देते हैं बजटेड लेबर आवर्स फॉर ग्रेड ए वर्कर, राइट। और वेज रेट कितना है? वेज रेट है इसका 5, राइट। तो अगर मुझे कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट के लिए जो है वो हम लेबर cost of grade A worker will be around 5 times 17,850। तो ये बजटेड लेबर कॉस्ट हो गई लेबर ए की, राइट। एग्जैक्टली यही चीज हम करेंगे लेबर बी के लिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको कंट्रोल सी कर रही हूँ, कंट्रोल बी, और फिर हम चीजों को उसी हिसाब से चेंज कर लेंगे, ठीक है भाई। सो लेबर आवर्स रिक्वायर्ड फॉर अल्फा, अल्फा के कितने यूनिट्स बनाने हैं? 6300, यहाँ से ले लेते हैं। बीटा के हमें यूनिट्स बनाने हैं 9800। अल्फा के एक यूनिट को बनाने में लेबर 1 घंटा ले रहा है, और अगर लेबर बी बीटा बनाता है तो 12 मिनट में बन रहा है। 12 मिनट का मतलब है 12 डिवाइडेड बाई 60,
तो 9800 यूनिट्स को बनाने में 1960 आवर्स लगेंगे। तो टोटल लेबर आवर्स जो ग्रेड ए वर्क बी वर्कर को लगेंगे वो तकरीबन 8260 आवर्स हैं। वेज रेट इसका 5 नहीं है, वेज रेट इसका 6 है। तो ये लेबर की कॉस्ट हो गई, तो ये लेबर बी की कॉस्ट हो गई। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लेबर बजट भी बना दिया। अभी भी बैटरी है। The next task is to calculate what overhead absorption rate. अब देखिए बजटेड ओवरहेड्स तो मेरे पास हैं। बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 180,000। हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। तो बजटेड ओवरहेड्स तो 180,000 है। ठीक है, सवाल ये पैदा होता है बजटेड एक्टिविटी लेवल क्या होगा? एक्टिविटी लेवल में यूनिट्स लेंगे या आवर्स लेंगे? एक्टिविटी में यूनिट्स नहीं लेंगे, आवर्स लेंगे, बिकॉज एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं तो हम आवर्स लेते हैं, राइट? मल्टीपल प्रोडक्ट का केस। क्या मेरे पास बजटेड लेबर आवर्स हैं? अब क्वेश्चन ये आता है लेबर ए या लेबर बी। तो दोनों ही डायरेक्ट वर्कर्स हैं, तो दोनों ही के आवर्स लेंगे। सो लेबर ए के आवर्स हैं 17,850, लेबर बी के आवर्स हैं 8,260। तो ये टोटल आवर्स हैं लेबर की। तो व्हाट विल बी द OAR? Budgeted overheads divided by budgeted activity level, which is 226,110 machine hours, labor hours. So it's around $6.89 per labor hour. Right? अब अगर कोई मुझे कहता है कि यार आखिरी रिक्वायरमेंट कर दो, मुझे जरा कॉस्ट पर यूनिट निकाल दो, तो कॉस्ट पर यूनिट आप कैसे निकालेंगे? देखो कॉस्ट पर यूनिट में क्या क्या आता है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, यही चीजें आती हैं। तो रॉ मटेरियल मेरे पास कौन कौन सा है? रॉ मटेरियल मेरे पास है रॉ मटेरियल 1। हम कॉस्ट पर यूनिट पे आ रहे हैं ना, कॉस्ट पर यूनिट। रॉ मटेरियल 1, रॉ मटेरियल 2, लेबर ए, लेबर बी और ओवरहेड्स। बिकॉज यहाँ तक तो प्राइम कॉस्ट बन रही है, मटेरियल और लेबर की प्राइम कॉस्ट है, चाहे तो एक हेडिंग डाल दें प्राइम कॉस्ट की। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हम अल्फा और बीटा को अलग अलग लेके चलेंगे। राइट। अच्छा, अब कॉस्ट पर यूनिट अगर मुझे निकालनी है तो एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि जो मटेरियल की कॉस्ट है उसको हम डिवाइड कर लें यूनिट्स के साथ। परचेज कॉस्ट नहीं, कंजम्पशन की कॉस्ट। कंजम्पशन की कॉस्ट हमने निकाली नहीं है, कोई बात नहीं, हम वैसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। एक यूनिट अगर हम अल्फा के बना रहे हैं तो 4 kg चाहिए, राइट? और एक यूनिट की प्राइस कितनी है? एक यूनिट की प्राइस है $3। ठीक है, बीटा के एक यूनिट अगर मुझे बनाना है रॉ मटेरियल 1 को यूज करके, तो 2 किलोग्राम्स लग रहे हैं और 1 किलोग्राम की प्राइस है £4, राइट? सो अच्छा, रॉ मटेरियल 2 में यही चीज है, 250 ग्राम्स है तो 0.25 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय प्राइस इज $4। सेकेंड में भी 0.25 ही है, लेकिन ये मल्टीप्लाई होगा $4 से। मेरे ख्याल में पहले वाला $3 था। नहीं, दोनों ही 4 होगा ना, बिकॉज प्राइस तो दोनों की सेम रहेगी। ठीक है, मेक सेंस। अच्छा, लेबर में कितनी कॉस्ट लगेगी? लेबर की कॉस्ट होगी 30 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय $5। और ये हो जाएगी 1.5 टाइम्स 5। तो ये लेबर ए की कॉस्ट हो गई। लेबर बी की कॉस्ट क्या होगी? 1 घंटा ले रहा है लेबर बी फॉर प्रोडक्ट ए और उसका वेज रेट है $6। सेकेंड प्रोडक्ट में ये 12/60 आवर्स ले रहा है और उसका वेज रेट है 6, राइट? सो व्हाट विल बी द प्राइम कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट विल बी द सम ऑफ ऑल दीज फिगर्स, राइट? हम इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं फॉर्मूले को। ठीक है, फिर बारी आएगी ओवरहेड्स की। अच्छा देखिए, OAR हमने जो निकाला है वो पर लेबर आवर निकाला है। अब सोचे लेबर आवर्स में क्या सिर्फ ग्रेड ए का वर्कर है या ग्रेड बी का भी वर्कर है? दोनों वर्कर्स है ना। तो इसका मतलब जब हम 6.8931 लेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों लेबर आवर्स के साथ, राइट? तो इसको बना अल्फा को बनाने में आधा घंटा लग रहा है और
लेबर ए का, और लेबर बी जो अल्फा को बना रहा है वो 1 घंटे में बना रहा है, तो ये टोटल प्रोडक्ट जो है वो आपकी 1.5 घंटे में बन रही है। 30 मिनट्स लेबर ए का और 1 घंटा लेबर बी का। सो दिस इज दी एब्जॉर्ब ओवरहेड। उसी तरीके से ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाई बाय 1.5 प्लस 12/60, 11.71। सो कॉस्ट पर यूनिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी दिस प्लस दिस, और इसी को हम यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे। सो ये मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। ठीक है, सो दैट्स बेसिकली हाउ वी डू ऑल दीज कैलकुलेशंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को करना है, वो क्वेश्चन मैंने सिमरा को फॉरवर्ड कर दिया है, वो आप लोगों को फॉरवर्ड कर देगी, वो आप देख लीजिएगा। बट कोशिश करें जब आप लोग नेक्स्ट क्लास में आए तो ये क्वेश्चन आपके जहनों में होना चाहिए, बिकॉज जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे वो फिर इसी का एडवांस वर्जन है। ऑलराइट, चलें जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।